Welcome back to another lecture, Maxima and Minima. Consider the graph of the continuous function y equal to fx in the interval x1 and x2. x1 और x2 के बीच में हमने एक कर्व ड्रॉ कर दी. Clearly the point P1 is the highest in its own immediate neighborhood. This is the highest point. और इसके जो नेबरहुड में पॉइंट्स होंगे वो लेट अस टेक x माइनस एच, x प्लस एच. h is the small distance, very very small. Similarly at point P2, similarly at point P3, similarly at point P4, we take neighborhoods. At each of these points P1, P3, the function is said to have a maximum value. हम देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा हमें और यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, मतलब पीक पॉइंट्स. दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑल्सो. ऑन द अदर हैंड द पॉइंट P2 इज द लोएस्ट इन इट्स ओन इमीडिएट नेबरहुड. इसके नेबरहुड में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो इससे आपके पास बड़े रहेंगे, ग्रेटर रहेंगे. सिमिलरली एट पॉइंट P4 ऑल द नेबरहुड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन दैट पॉइंट. इस टाइप से हमें P2 और P4 में मिनिमम मिलेगा और P1 एंड P3 में हमें मैक्सिमम मिलेगा. डेफिनेशन: ए फंक्शन f of x is said to have a maximum value at x इक्वल टू a. माना यहाँ पर x इक्वल टू a है. इफ देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल नंबर h, हाउएवर स्मॉल भी कह सकते हैं इसको, ग्रेटर देन 0. यहाँ पे कर सकते हैं हाउएवर स्मॉल, वेरी स्मॉल नंबर, सच दैट f ऑफ a, जो वैल्यू यहाँ पे f इस पॉइंट पर देगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन होगी f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a माइनस एच, इसके नेबरहुड पॉइंट से. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच एंड f ऑफ a मस्ट बी ग्रेटर देन f ऑफ a प्लस एच. यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू रहेगी वो इससे लेस रहेगी, यहाँ पर भी लेस रहेगी. तभी हमने यहाँ पे कहा f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच एंड f ऑफ a ग्रेटर देन f ऑफ a, और it can be written as f of a is greater than both f of a minus h and f of a plus h. Similarly, in the same way at point P2, if here is point x equal to a, f of a must be less than f of a minus h and f of a must be less than f of a plus h. तो ये कंडीशन आपके पास मिनिमम की आ गई. ये कंडीशन इज मिनिमम और दिस कंडीशन इज फॉर मैक्सिमम. अब कंडीशन कर लेते हैं. कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. इस ग्राफ से यहाँ पर क्लियर है एट पॉइंट P1 दिस इज द पीक पॉइंट, और यहाँ से जैसे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, दिस इज द टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो टेंजेंट आपके पास होगा यहाँ पे dy बाय dx. टेंजेंट this is the slope, this is equals to 0, dy by dx equal to 0 because there is no slope at point P1, so hence dy by dx equals to 0 here at point P1. Similarly at point P2 यहाँ पर भी parallel to x axis slope है, तो therefore यहाँ पर भी dy by dx 0, यहाँ पर भी dy by dx 0. at point P4 dy by dx equals to 0. At each point of extreme value it is seen from this figure that the tangent to the curve is parallel to the x-axis, that is its slope dy by dx equal to 0. Thus, if the function is maximum or minimum at x equal to a, then dy by dx at a equal to 0. We can write it as this
at x equals to a. This is the first condition. At x equal to a here, the curve is increasing in a small interval. अब यहाँ पे इंटरवल हमारे पास दो आ जाएंगे. At point P we can write at point P1 let us take interval a minus h a. पहले हम इस इंटरवल में देखेंगे a minus h to a minus h to a. The function is increasing before L1. Here is L1. The curve is increasing. The curve is increasing while on interval a to a plus h, the curve is decreasing. On this interval, dy by dx slope is greater than or equal to 0. For this interval, dy by dx less than or equals to 0. But at point x equal to a, dy by dx equal to 0. So therefore, we can write it as, we can write at x equal to a here. Here is a minus h. Here is a plus h. On this interval, dy by dx is greater than or equal to 0. Here is dy by dx equal to 0. Here is dy by dx less than 0. Less than or equal to 0. We can write. So here is a positive sign. Here is 0. Here is negative. Thus dy by dx, which is a function of x, changes sign from positive to negative in passing through point P1. That is, it is a decreasing function in the interval a minus h to a plus h. अगर हम होल इंटरवल की बात करें a minus h to a, this function becomes decreasing function. But most important, dy by dx is also a function. So therefore, dy by dx is also a function of x. So therefore, double derivative of y with respect to x square must be negative for interval a minus h, a plus h. In this interval, we find maximum value. So therefore, the condition is d2y upon dx square must be negative. Similarly, around a minimum point, say P2, dy by dx changes sign from negative to positive in passing through point P2. That is, it is an increasing function in the small interval around L2, and therefore its derivative d2y upon dx square is greater than 0 at point P2, जहाँ पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है. मिनिमम के लिए कंडीशन है, और जो पिछले वाली थी दैट इज मैक्सिमम. वर्किंग रूल. सबसे पहले नंबर 1, y इक्वल टू f of x, we find dy by dx, that is f dash x. Number 2, f dash x equals to 0, and we find extreme points.
extreme points or critical points. Number third, finding double derivative, that is d2y upon dx square, and check at x equals to that point what is the sign of this double derivative of x. अब इसके साइंस आपके पास दो टाइप के रहेंगे. इफ f डबल डैश एट x इज पॉजिटिव और f डबल डैश एट x इज नेगेटिव, और इफ f डबल डैश एट x इक्वल्स टू 0. अगर ये पॉजिटिव हुआ जैसे कि हमने पीछे किया तो यहाँ पर हमें मिनिमम मिलेगा. अगर ये नेगेटिव हुआ हमें मैक्सिमम मिलेगा. अगर ये 0 हुआ, नो मिनिमम नो मैक्सिमम, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल. Example is, find the maximum and minimum values of 3x raised to power 4 minus 2x cube minus 6x square plus 6x plus 1 in the interval 0 to 2. Solution. Given f of x equal to 3x4 minus 2x cube minus 6x square प्लस 6x प्लस 1, इंटरवल आपके पास है 0 to 2. सबसे पहले जैसे वर्किंग रूल में हम करेंगे, f डैश एक्स निकाल लेते हैं. f डैश एक्स इक्वल्स टू 12x क्यूब माइनस 3 2 6, 6x स्क्वायर माइनस 12x, 6 2 12 प्लस 6 कॉन्स्टेंट का 0. ये आ गया. यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है तो देयरफॉर वी कैन राइट फॉर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मिनिमा निकालना तो ये कंडीशन हमने अभी अभी पढ़ी. दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. दिस इज ए स्लोप, क्योंकि स्लोप पैरेलल था एक्स एक्सिस के तो इसको 0 करना पड़ेगा. f डैश एक्स इक्वल्स टू 0. तो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड टर्म्स इक्वल टू 0. तो 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. कुछ कॉमन आ रहा है, 6 इज कॉमन. 2x क्यूब माइनस x square minus 2x plus 1 equals to 0. This is cubic equation. This gives 3 roots and we can take x square common from this and we can solve it. 6 x square को common जैसे करेंगे यहाँ पे हमारे पास आएगा 2x minus 1, minus 1 is taken common, 2x minus 1 equals to 0. This is again common, 2x minus 1, x square minus 1 equals to 0. 6 को इधर ले जाएंगे वो भी 0 हो जाएगा. हमारे पास ये मिला. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. यहाँ पर वी कैन राइट 2x minus 1 equals to 0 और x square minus 1 equals to 0. ये 0 होगा तो x equals to 1/2. अगर ये 0 हुआ x square equals to 1, x equals to plus minus 1, under root 1 is 1. तो हमारे पास कितने पॉइंट्स आए? -1 + 1 1/2. अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो देयरफॉर पॉइंट्स आर -1 -1/2 1 1 2 3. 3 पॉइंट्स आए. अब अलग अलग हम एक एक पॉइंट्स पे चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव निकाल के. तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन दिस, वी गेट f डबल डैश x निकालेंगे यहाँ से 36x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 12. ये आ गया. तो f डबल डैश एक्स, इसको 12 को कॉमन कर सकते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1. ये आ गया आपके पास f डबल डैश एक्स. सबसे पहले चेक करते हैं एट पॉइंट -1 पे. तो f डबल डैश एट x एट -1, क्या x की वैल्यू देखते हैं, क्या रखते हैं -1. तो 12 ऑफ 3 ऑफ -1 का स्क्वायर दैट इज 1. 3 into 1 3 minus minus plus 3 plus 1 minus 1 that is equals to 12. This cancel into 3. 36 greater than 0. This is positive. तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव मिला. तो पॉजिटिव मीन्स कंडीशन क्या बोलती है आपके पास, अगर f डबल डैश एट x
एट पॉइंट ए पॉजिटिव है, तो वी गेट मिनिमम एट पॉइंट x1. Similarly, नेक्स्ट पॉइंट इज 1 पे चेक किया, तो 1 पे सिमिलरली हम ऐसे चेक करेंगे, एट 1 पे चेक करेंगे तो 12, यहाँ पे आपके पास वही आया 3 -1 -1, 3 - 2 दैट इज पॉजिटिव, 1 दैट इज 12, अगेन पॉजिटिव. यहाँ पे भी आपके पास मिनिमम मिला, इस पॉइंट पर भी मिनिमम. अब लास्ट पॉइंट है आपके पास एट पॉइंट 1/2 पे भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो 1/2 पुट करेंगे, f डबल डैश एट x 1/2 पे चेक किया 12, यहाँ पर हम चेक करेंगे यहाँ पे दैट इज 3 × 1/2 1/4, 3/4 -1/2 -1. इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, वी विल गेट 12, एलसीएम इज 4, 3 - 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 4, दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 4 कॉमन, तो 3 - 2 दैट इज 1, 1 - 4 -3, ये कैंसिल हो गया, 3 दैट इज -9, नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिला. तो ओवरऑल वी कैन से दैट हमारे पास -1 एंड 1 दैट इज +-1, इस पॉइंट्स पे हमें मिनिमम मिला और 1/2 पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिला. अगर हम वैल्यू निकालना चाहें व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. By using Taylor series, f of a plus h b plus k equal to f of ab plus h fx ab plus k fy ab plus 1/2 factorial h square f xx ab plus 2h k fxy ab plus k square fyi ab plus f2. So अब हम इसका यूज़ हम करेंगे 2 वेरिएबल के लिए कि 2 वेरिएबल में हम कैसे मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं. x axis, y axis, z axis. Let us suppose this is the curve. At top of the curve we find maximum. Similarly, for minimum we find minimum here. This slope is parallel to this axis. This slope is also parallel to this axis. If we take x here, y here, z here, this is the point here, minimum point, and another is point of inflection. There is no maxima, no minima. तो similarly फर्स्ट यहाँ पे हम अब x = a पॉइंट लेंगे, x भी वेरी करेगा, y भी वेरी करेगा. इसकी जो इमेज आएगी वो आएगी xy प्लेन में यहाँ पर, तो हम पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे a भी पॉइंट ले सकते हैं. तो पहली कंडीशन तो वही रही, फर्स्ट कंडीशन f of x at ab equals to 0, f of y at ab equals to 0. सेकेंड कंडीशन में हम यहाँ से यूज़ करेंगे टेलर सीरीज और एक डेल्टा निकालेंगे, स्मॉल चेंज, विच इज़ इक्वल टू f of a plus h, b plus k minus f of ab which is equals to h curly f by curly x plus k times curly f by curly y at point ab plus 1/2 factorial. ये वाली टर्म्स को हम लिखेंगे h स्क्वायर कर्ली स्क्वायर f अपॉन कर्ली x स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख लेता हूँ 2hk कर्ली स्क्वायर f अपॉन कर्ली x कर्ली y प्लस k स्क्वायर कर्ली स्क्वायर f अपॉन कर्ली y स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन. बाकी जो कंट्रीब्यूशंस टर्म्स का है वो बहुत नेग्लेजिबल है, इसका भी नेग्लेजिबल है इसके कंपैरिजन में. तो अब हम इसके ऊपर और इसके ऊपर चेक करते हैं कंडीशन. साइन ऑफ डेल्टा विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ दिस h f x at point AB
प्लस के टाइम्स एफ वाई एट पॉइंट ए बी। यहाँ पे साइन का देखेंगे क्या चेंज होता है। अगर हम यहाँ पे h को 0 पुट कर लें, टेकिंग h इक्वल टू 0, वी सी दैट द राइट हैंड साइड चेंजेस साइन व्हेन k चेंजेस साइन। ये तो 0 हो गया, तो अब k बचा। k जब k के ऊपर डिपेंड करेगा साइन, k जैसे चेंज करेगा साइन, तो हेंस f ऑफ एक्स वाई कैन नॉट हैव ए मैक्सिमम और ए मिनिमम एट ए बी अनलेस एफ वाई एट ए बी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये तो k साइन चेंज करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इट मीन्स इसको 0 होना पड़ेगा। एफ ऑफ वाई एट ए बी इक्वल टू 0। सिमिलरली व्हेन k अप्रोच टू 0, तो देन एफ ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 0। तो दिस इज द कंडीशन हियर। तो अगर हम इस पे आए सेकेंड इंटरवल पे, तो सेकेंड इंटरवल पे हम कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर आपके पास होता है एफ एक्स एक्सिस को आर पुट कर लेते हैं, और दूसरे को हम कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली एक्स कर्ली वाई को हम एफ एक्स वाई को हम एस पुट कर लेते हैं। लास्ट है कर्ली स्क्वायर एफ अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, दैट इज एफ वाई वाई, इसको हम टी पुट कर लेते हैं। साइन ऑफ डेल्टा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल टाइम्स एच स्क्वायर आर प्लस 2HK एस प्लस के स्क्वायर टी। अब हम इसको पूरा होल स्क्वायर बनाते हैं। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन आर से डिवाइड करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2HK आर एस प्लस के स्क्वायर टी आर भी आ जाएगा यहाँ पर। 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2r नीचे है आपके पास, इनसाइड जाएगा HR प्लस के एस का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आर टी माइनस एस स्क्वायर। जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के लिए, यहाँ पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, ये आपके पास साइन को डिसाइड करेगी। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो डिपेंड अपॉन दिस टर्म्स। अब नंबर 1, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज पॉजिटिव along with r positive, तो then we find minimum. Number 2, if rt minus s square is positive along with r less than 0, then we find maximum. यहाँ पर हमें मैक्सिमम मिलेगा। नंबर 3, if rt minus s square is negative, then we find point of inflection. Point of inflection. No maxima, no minima. यहाँ पे मिलेगा। नंबर 4, if rt minus s square equals to 0, then further investigation. हम इसको याद कैसे करें rt minus s square? इसके लिए एक हम मैट्रिक्स बना देते हैं। लेट अस टेक मैट्रिक्स डेल्टा ऑफ ऑर्डर 2/2, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सिमिलरली A21 A22 बना देते हैं। इसको याद करते ना, तो अगर हम वन एक्सिस को रिप्लेस x से करें, 2 को हम y से रिप्लेस करें, तो वी विल गेट AXX, AXY, AYX, AYY मिलेगा। डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट। अब हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में चाहिए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट दिस। वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस AXX, AXY, AYX, AYY मिलने वाला है हमें डिटर्मिनेंट। सिंपली अगर A को हम F से रिप्लेस करें, तो वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ FXX, FXY, FYX, FYY, FXY इक्वल टू FYX, ये बराबर होगा। तो अब हम इसको हमने R माना, इसको हमने S माना, दिस इज ऑल्सो S एंड T, विच इज इक्वल्स टू RT माइनस S स्क्वायर, RT माइनस
एस स्क्वायर एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ वाई एक्स। ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ वाई एक्स के बराबर है। डेल्टा इक्वल्स टू आर टी माइनस एस स्क्वायर। वर्किंग रूल देख लेते हैं। आपके पास फंक्शन है एफ एक्स वाई। नाउ वी वांट टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। नंबर फर्स्ट, पहले स्टेप में हम एफ एक्स करली एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये निकालेंगे। सिमिलरली हम निकालेंगे करली एफ बाई करली वाई। नंबर सेकंड स्टेप में हम करली एफ बाई करली एक्स को ज़ीरो करेंगे, करली एफ बाई करली वाई को भी ज़ीरो करेंगे एंड सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई वैल्यूज़। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आए एक्स वाइज के, इनको सॉल्व करके तो देन हम डेल्टा निकालेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो वेयर आर आपके पास करली स्क्वायर एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, आर एस आपके पास है करली स्क्वायर एफ करली एक्स करली वाई, और टी आपके पास है करली स्क्वायर एफ ऑफ करली वाई स्क्वायर। ये फाइंड करके यहाँ पे नंबर लास्ट स्टेप दैट इज फोर्थ स्टेप, तो एफ एक्स एक्स पॉजिटिव along with delta positive, so we will get minimum. Simple. If f x x that is r less than 0 along with delta greater than 0, तो हमें मिलेगा मैक्सिमम। अदरवाइज बाकी जो कंडीशंस पिछली थी वो वही रहेगी। अगर डेल्टा लेस देन 0 है तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, or whatever may be the value of f(x)(x). Example, examine the following function for extreme values f of xy equal to x raised to power 4 plus y raised to power 4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square। अब साथ साथ देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए। एक्सट्रीम वैल्यू मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के लिए। गिवन function f of xy equal to x raised to power 4 plus y raised to power 4 minus 2x square plus 4xy minus 2y square। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे करली एफ बाई करली एक्स। पार्शियल इसलिए करेंगे हेयर आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्स से डिफ्रेंशिएट करके वी विल गेट 4x क्यूब प्लस वाई के विद रिस्पेक्ट टू 0 माइनस 4x प्लस यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया दैट इज़ 4y माइनस 0। तो ओवरऑल वी गेट 4 इज कॉमन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ है विद रिस्पेक्ट टू वाई मिलेगा, वाई से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से 0 हो गया प्लस 4y क्यूब, यहाँ पर भी 0 हो गया माइनस 0 प्लस 4x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y किया दैट इज 4y, यहाँ पे 4y, 4 इज अगेन कॉमन, वी विल गेट y क्यूब प्लस x माइनस वाई। ये मिला हमारे पास इक्वेशंस। तो अब कंडीशन क्या बोलती है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एफ वाई इक्वल्स टू 0। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ये दोनों 0 हो जाएगी तो इट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑन एडिंग ये माइनस है ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल आउट, वी विल गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस बिकम्स फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। वी नो एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, हमें ये चाहिए। दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। फिर से कॉमन है एक्स प्लस वाई फिर से कॉमन है, वी विल गेट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। ये मिल गया हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मिला ये। तो राइट हैंड साइड में आपके पास 0 है, तो
अब जब हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज, माइनस ऑफ 3xy, तो इनमें से क्या जीरो होगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। तो देखते हैं, चेक करते हैं। तो लेट अस टेक टू सॉल्व दिस, वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। इसको सॉल्व करके ये मिला, तो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy, 3 माइनस दैट इज माइनस xy, ये हमें मिलता है इंटू एक्स प्लस वाई। अब इनमें से क्या जीरो होना चाहिए, एक तो नॉन जीरो होना चाहिए, हम इसको जीरो कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस वाई। x अगर 1 होगा तो y आपके पास -1 हो जाएगा, अगर y 1 है तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये पॉसिबल है, ये दिखता है। अगर हम यहाँ पे कुछ करते हैं 1 -1 तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेट अस सपोज x इज 1, y इज -1, तो यहाँ पे 1 आया, 1 प्लस 1 2, और दैट इज माइनस माइनस प्लस हो गए, इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस होल्ड्स x प्लस वाई इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू माइनस वाई। तो x इक्वल टू माइनस वाई हम किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं। लेट अस सपोज दिस, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ पे पुट किया x इक्वल टू माइनस वाई का क्यूब माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास माइनस वाई क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई क्यूब प्लस 2y इक्वल्स टू 0, तो y को कॉमन किया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें सॉल्व करके वैल्यूज मिलती है y इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, दैट इज y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो क्या पॉइंट्स मिले हमारे पास, पॉइंट्स मिले हमारे पास 0, माइनस अंडर रूट 2, प्लस अंडर रूट 2, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ y। तो y के पॉइंट्स हम x के पॉइंट्स से हम रिप्लेस कर देंगे माइनस, क्योंकि x के पॉइंट्स उसके नेगेटिव्स है। तो देयरफॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स वाई के, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी 0 है, एक पॉइंट आ गया। अगर y की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 है, दैट इज प्लस हो जाएगी x की, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, दूसरे पेयर के लिए भी वही हो जाएगी, माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। These are the points, these are called extreme points। अब इन एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा 1 by 1। एट पॉइंट अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो डेल्टा हमने निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर, वो क्या आएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो हम डबल डिफ्रेंशिएशन भी कर लेंगे उसको, फंक्शन को। तो आर निकालना पड़ेगा कर्ली स्क्वायर एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एफ एक्स ये है, इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट 3x स्क्वायर माइनस 1, 4 कॉमन है, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आया आर। तो डेल्टा सिमिलरली टी की वैल्यू निकालेंगे, कर्ली स्क्वायर एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वाई से करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, 4 टाइम्स 3y स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास आ गया। तो एस आपके पास क्या आएगा, एस किसी को भी आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास एस आ जाएगा, यहाँ से वाई से करने पे हमारे पास आएगा दैट इज 1 विच इज 4 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से पुट करने पे डेल्टा हमें मिलेगा आर टी, आर आपके पास ये, टी हमारे पास ये, तो 4 4 जा 16, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3y स्क्वायर माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर, एस इज दिस 4, 16 आ गया। तो हमारे पास 16 इज कॉमन, 3x स्क्वायर माइनस 1, 3y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 आ गया, दिस इज डेल्टा। अब पॉइंट्स आपके पास है, यहाँ पर गिवन पॉइंट्स आपके पास है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, इसको चेक करेंगे, मीन्स x की वैल्यू हम ये रखेंगे, y की वैल्यू हम ये रखेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा 16 टाइम्स
3x की वैल्यू हमने √2 रखी, दैट इज 2, 3 इंटू 2 6 माइनस 1, 3 इंटू 2 दैट इज 6 माइनस 1 दैट इज 5। ओवरऑल आपके पास 5 मिला। यहाँ पर भी 5 ही मिलेगा, -1, 25 माइनस 1 दैट इज 24, 16 इंटू 24 दैट इज पॉजिटिव। तो डेल्टा इज पॉजिटिव। एक कंडीशन है आपके पास, डेल्टा इज पॉजिटिव इन दोनों पॉइंट्स के लिए। अगला पॉइंट्स भी रखेंगे, वहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा। अब आर की वैल्यू देखते हैं। आर इज दिस 4 टाइम्स 3x² माइनस 1। अब ये पॉइंट्स पुट करेंगे, √2 माइनस √2। यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, x की वैल्यू आपके पास है ये, दैट इज इक्वल्स टू 4, 3 इंटू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4, 6 माइनस 1, 4 इंटू 5 दैट इज 20, पॉजिटिव आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन, एट पॉइंट वी कैन राइट √2 माइनस √2 डेल्टा इज पॉजिटिव अलॉन्ग विद आर पॉजिटिव। तो हमें मिला मिनिमम मिला, मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट इज। सिमिलरली नंबर 2, एट पॉइंट रिवर्स किया, -√2 एंड 2, डेल्टा फिर अगेन पॉजिटिव है। आर की वैल्यू चेक कर सकते हैं, आर इज अगेन हियर, आर फिर से हमें पॉजिटिव मिलेगा, तो आर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी मिनिमम मिला, एक से ज़्यादा मिनिमम मिल गया हमें दोनों पॉइंट्स पे। एट पॉइंट 0, 0 पे देखते हैं डेल्टा क्या देगा। डेल्टा हमारे पास यहाँ पे देखते हैं RT माइनस s² एट 0, 0 पॉइंट्स पे क्या आता है, 0, 0 पॉइंट्स पे। तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पुट करेंगे x की 0, y 0 दैट इज 1, 1, -1 माइनस 1, 1, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 मिला। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड, f of 0, 0 इक्वल टू 0 एंड फॉर पॉइंट्स along the x एक्सिस वेयर y इक्वल टू 0। अगर हम y इक्वल्स टू 0 करें along x एक्सिस की तरफ, we will get f of xy इक्वल टू x4 माइनस 2x², x² को यहाँ पे कॉमन किया तो we will get x² माइनस 2 मिला, which is negative less than 0। again for points along the line, अगर लाइन शुरू करें y equals to x, तो we will get f of xy that is equals to 2x raised to power 4 which is positive। ये नेबरहुड में जैसे जाएंगे 0, 0 ओरिजिन के नेबरहुड में, there are points where f of xy, ध्यान से देखना, f of xy लेस देन f of 0, 0, इसके नेबर एक तो हमें लेस मिला, एंड देयर आर पॉइंट्स वेयर f of xy मस्ट बी ग्रेटर देन f of 0, 0। कभी लेस मिल रहा है इसे, कभी ग्रेटर मिल रहा है, तो हेंस f of 0, 0 is not an extreme value, is not an extreme value, extreme value। तो क्या होगा ये, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड सैडल पॉइंट। एट पॉइंट 0, 0 we get saddle point, hence the problem। thank you very much।